Good morning, everyone. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, students, today we all are going to continue our chapter number 3 of your civics textbook. The name of the chapter is What is Government? In our earlier classes, we started this chapter. We get to know about what is government, and after that, we talked about the different levels of government and how government, why it is important for government, why it is important for what is the important role government plays in our life. Okay, how they make laws, and agar koi person hai, if any person is there, if some people did not like those types of laws, then kya hoga, then you can approach to the court. Okay, and court is also a form of government. Okay, so in our today's class we will talk about types of government. Okay, so there are different types of government. In our country, we follow democratic government, democracy. So who gives the government this power to make decisions and enforce laws? Obviously, this is such a big question. Who gives the government this power? आप बोलोगे मैम मुझे मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे पावर मिलनी चाहिए. तो कौन देता है ये पावर? ये who gives the government this power to make decisions and enforce laws? The people. The answer of this question is actually in our country people take the decision. Okay, people select the type of government, but actually this answer, the answer to this question depends on the type of government there is in a country. So किस type की government है? In our country we have democracy. Okay, in a democracy it is the people who give the government this power. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defends its decision to the people. So, अब डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट होती है. ठीक है, अब जैसे एक डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट. तो एक डेमोक्रेसी में पीपल क्या करते हैं, लोग होते हैं जो ये पावर लेते हैं. दे इलेक्ट द गवर्नमेंट. They do this through election. They elect the government. People give the government this power. People give the government the power. No, people give the decision making power to the government. Okay, and वो किस तरीके से करते हैं? They do this through elections. Elections के through करते हैं, in which they vote for particular persons and elect them. वो किसी particular person के लिए वो vote करते हैं और फिर उन्हें elect करते हैं. Once elected, these persons form the government. और एक बार इलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट बन जाती है. And democracy में government has to explain its action and defends its decision to the people. अपने democracy it is a form of government, और government को क्या करना होता है, अपने actions को explain करना होता है. even जो भी decisions लिए defend करना होता है कि कौन से actions लिए, कौन से उन्होंने एक्शन लिए हैं, कौन से डिसीजंस लिए हैं, इन सारी चीजों को. ओके, सो अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की. अभी हमने बात की थी डेमोक्रेसी की. नाउ इट इज अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज मोनार्की. मोनार्क मीन्स king. What is the meaning of monarch? Monarch means king. The monarch, king or queen, actually it is a king or a queen. Okay, not only king, it is either it is a king or a queen. The monarch has the power to make decisions and run the government. The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. अब देखिए, अब आपने बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल सीरियल्स आते हैं, हिस्टोरिकल मूवीज आती है, इवन स्टोरीज के थ्रू भी आपने सुना होगा. इवन आप अपने हिस्ट्री के बुक में भी आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे. ठीक है, वो रूल करते थे.
तो वो कौन थे, मोनार्कियल रूल था, वो डिसीजंस लेते थे, वो गवर्नमेंट को रन करते थे। हो सकता है एक मोनार्क जो है, एक किंग या क्वीन जो है, एक स्मॉल ग्रुप को क्या करे, स्मॉल ग्रुप के साथ डिस्कस करके वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर ले, बट जो फाइनल पावर होती है वो मोनार्क के पास ही होती है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में आपको लोगों को बताना होता है कि आपने क्या पावर, क्या डिसीजन लिया है, ठीक है, आप क्या एक्शंस करोगे, कि उसका क्या रिएक्शन होगा, आपको डिफेंड भी करना होगा। बट मोनार्की में, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, दिस इज not necessary at all to defend the actions they take, or defend the decisions they took, or the actions, whatever the actions they took, they could, like, they have not to explain this necessarily. Okay, कोई जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को explain करें. Okay, now just look at this picture. This is the picture of a monarch. So now we talked about two types of government in this class, in this chapter. Actually, there are several other types of government also, which we will talk about in our further classes. Okay, so two types of government we talked about. One type is democracy and the second type is monarchy. Okay, so now democratic governments. India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracy. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. This is one of the most important feature of the democracy. People have the power to elect their leaders. People has this power कि वो अपने leaders को क्या करे, elect करे. So in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in making of these rules. अब देखिए, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है, वो लोगों के पास होती है. लोग क्या करते हैं, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर. और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो डिमांड थी, ये डिमांड थी, या फिर बोल दीजिए डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में बहुत ही लॉन्ग स्ट्रगल के बाद आई है, ऐसे ही नहीं आ गई है. आपने सुना होगा बहुत हमारे लाइक प्रोमिनेंट लीडर्स के, प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट के बारे में, प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर ऐसे बहुत से प्रोमिनेंट, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना होगा. इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है. चंद्रशेखर आजाद, there are so many. Okay, so democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. In our country we have representative democracy. Representative का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी को represent करते हैं. For example, you all are in class 6, okay, and class 6 में suppose you have to say something to the principal मैम कि मैम हमारे स्कूल में ना स्विमिंग पूल होना चाहिए. ओके, आपने ये जो डिमांड है या फिर ये जो एक रिक्वेस्ट है, आपने वो मेरे सामने रख दी, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ योरसेल्फ मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी और बोलूंगी ऑन द बिहाफ ऑफ क्लासेस, आई एम रिप्रेजेंटिंग यू कि दे वांट टू हैव अ स्विमिंग पूल इन आवर स्कूल. ठीक है, मैंने आपकी बात को उनके सामने रख दिया. Okay, so this is called representation. I am representing you. So in our country we have representative democracy. हम हर एक एरिया में हमारे जो होते हैं लीडर्स होते हैं, ठीक है, हम उनको इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं या फिर हमें रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे इन बीकानेर, ठीक है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा के जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीकानेर से, वो है मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल. सो ही इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ बीकानेर. जितना भी एरिया उनके अंडर आता है उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके,
What they are doing? He is representing us. Okay. So now in representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. These representatives meet and make डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। अब देखिए हम क्या करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं और हमें रिप्रेजेंट करते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchising. What is universal adult franchising? All the adults of a particular country, of a democratic country, have the right to vote, have the right to elect their representative, right to elect their leader. In our country, the eligible age is 18 years. जो भी 18 years और above का है वो इंडिया में क्या कर सकता है, अपने वो वोट कर सकता है और अपने लीडर को इलेक्ट कर सकता है। ठीक है। These days, These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchising. Universal adult franchising का होना बहुत जरूरी है। This means that all adults in the country are allowed to vote. जितने भी adults हैं हमारी country में उनको voting का right होना चाहिए। और voting age क्या है हमारी country में? It is 18 years. 18 years है हमारी country में voting age. Okay? But it was not always like this. Can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in elections? In their earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote. This meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. Now, आपको पता है ये universal adult franchisee जो है in today's at present we have this universal adult franchisee. All the adults, either it is a poor, either it is a rich, either it is educated, illiterate, he has this power, he or she has this like right to vote, right to elect their रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट देयर लीडर। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कुछ सर्टेन लोगों को ही क्या दिया जाता था, ये राइट दिया जाता था। जैसे कि कुछ सर्टेन मैन जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी या फिर जो ओनली मैन को ही क्या है ये राइट मिलेगा कि वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सके, या फिर जो एजुकेटेड है उनको मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी लेस है, पुअर है, वुमेन है, उनको कोई राइट ही नहीं है ना। दिस कंट्री वाज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेन मेड। अब देख लो फ्यू मेन ही तो है, अब ऐसा तो नहीं वुमेन को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है। जो पुअर है उनको भी इग्नोर कर दिया। तो इसलिए हम उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेटिक फॉर्म, टोटली डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जहां पे जितने भी एडल्ट्स है कंट्री के उनको ये राइट हो कि वो वोट कर सके। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. अब देखिए इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? when we got our independence, we got our independence on 15th August 1947. ओके। और इंडिपेंडेंस से पहले एक बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप था। ठीक है। बहुत ही माइनॉरिटी मतलब जो कम लोग होते हैं। ठीक है। माइनॉरिटी जो कम लोग होते हैं उनको ही परमिशन थी कि वो वोट कर सके, और वो साथ में आते थे वो डिटरमाइन करते थे कि मेजॉरिटी की पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। So several people, including Gandhi ji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchising. बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे, बहुत सारे जो लोग थे, वो इस चीज के अगेंस्ट में थे, वो काफी शॉक्ड थे कि ये तो अनफेयर है लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमें जितने भी एडल्ट्स हैं उनको राइट टू वोट होना चाहिए, और इसी राइट टू वोट को ऑल एडल्ट्स हैव दिस राइट, ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote."
but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. Okay, यंग इंडिया एक मैगजीन था 1931 में, गांधी जी ने उस मैगजीन में लिखा कि मैं इस आइडिया को बिल्कुल भी बेयर नहीं करूंगा कि जो वेल्दी मैन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उन्हीं को ये राइट मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, बट ऐसे मैन को राइट मिलना चाहिए जिनका कैरेक्टर हो, ठीक है, जिसके पास वेल्थ नहीं है, जो लिटरेट पढ़ा लिखा नहीं है, उनके पास राइट नहीं है, उनके पास भी राइट होना चाहिए। ऐसा मैन जो ऑनेस्टली काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, फिजिकली काम कर रहा है, ठीक है, और उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास राइट होना चाहिए। लाइक मेरे को ये देख के बहुत बुरा लगता है कि लोगों के पास, जो पुअर हैं, जो अनवेल्दी हैं, उनके पास राइट नहीं है। एवरीवन शुड हैव दिस राइट टू वोट। ओके, सो this is all about this chapter. There is a one more topic mentioned in your book on page number 32. ठीक है, votes for women. Look at this box now. Nowhere in the world have government willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था। स्पेशली यूरोप और यूएसए में देखा गया था कि वुमेन को राइट नहीं थे, वुमेन को, पुअर को राइट नहीं थे, और उनको फाइट करना पड़ा था कि हमें भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना है। We also have this right to vote, right to participate in government. Okay, so women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. ठीक है, तो वुमेन ने इसके लिए स्ट्रगल किया, इसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस को रेज किया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या किया था, ये जो यूनिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, यूनिटी बन चुकी थी वुमेन के बीच में। वुमेन ही नहीं, बहुत सारे मेन ने भी इनको सपोर्ट किया, और इसी को हम बोलते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट, एंड सफरेज लिटरली मींस राइट टू वोट, कि वुमेन को भी राइट होना चाहिए, राइट टू वोट। So during the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. अब बहुत वॉर के टाइम पे, अब आपको पता है कि जो घर के जो भी आपके मेन थे वो फाइट, मतलब आर्मी में चले गए, ठीक है, वो वॉर में चले गए, तो अब घर की लिविंग कौन अर्न करेगा, ठीक है, तो घर के जो बूढ़े लोग हैं, जो माँ बाप हैं, उनको कौन देखेगा, तो उस टाइम पे वुमेन को बाहर निकलना पड़ा और काम करना पड़ा। Many women began organizing and managing different kinds of work. अब वुमेन ने भी क्या है, अलग अलग तरीके के काम करना स्टार्ट कर दिया था। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. अब stereotype, it is a term जब हम एक प्रीजुडिस कर लेते हैं, हमें ना पहले ही थिंकिंग बना लेते हैं कि नहीं, वुमेन है तो वो घर का काम ही करेगी, ठीक है, वो लड़की है तो वो पिंक कलर की ड्रेस ही पहनेगी, या गुड़िया से ही खेलेगी, या फिर किचन सेट ही करेगी। ये होता है जब हम ये थिंकिंग बना लेते हैं, इसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे जो वुमेन है, उन्होंने देखा, उन्होंने कि कितने अलग अलग तरीके के काम को वो ऑर्गेनाइज कर रही है, मैनेज कर रही है, और लोगों ने सोचा कि ऐसा अनफेयरनेस क्यों है, इतना स्टीरियोटाइप क्यों क्रिएट करके रखा हुआ है। वुमेन तो बहुत सारी चीजें कर सकती है, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो वुमेन बिगेन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, एंड उस टाइम पे वुमेन को देखा गया कि जो वुमेन है वो भी क्या है, इक्वली मैन के इक्वली वर्क कर सकती है, डिसीजंस ले सकती है। The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes, and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. अब देखिए बहुत सारे जो suffragettes थे, ठीक है, जो right to vote के लिए डिमांड कर रहे थे फॉर जितने भी वुमेन है उनके लिए, तो उन्होंने उनकी
डिमांड्स को सुना जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को चेन से बांध लिया रेलिंग्स में, और पब्लिक प्लेसेस में वो अपने आप को बांध के खड़े हो गए थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, भूखे रहे वो, और इसी वजह से अमेरिका में वुमेन को राइट टू वोट मिला 1928 में, और यूनाइटेड किंगडम, और जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में वैसे और भी दूसरी एक दो कंट्रीज आती है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में 1928 को मिला, फ्रांस में 1948 में आई। और जब इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ये चीज तो बहुत क्लियर थी कि जितने भी लॉज बनेंगे उसमें से एक लॉ तो ये होना ही चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड you will be wondered that this is the only law which implemented, which adopted in our constitution before any kind of deliberation or discussion। कोई डिबेट भी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई, और सारे लोग जो है बहुत क्लियर थे कि यस, हमें राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखना है। Okay, so class, this is all about this chapter. So go through this chapter, read this chapter very carefully, and if you face any kind of problem, do let me know. Thank you so much. Bye bye. Take care.